خلکو السلام علیکم. پورا 1 مہینے بعد آفٹر لانگ 1 month میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں اور ولاگ پوسٹ کر رہی ہوں. آج ہماری عید کا پہلا دن ہے اور آپ کو تھوڑے سا کلپ بتا دوں گی میری چاند رات کا. چلے پہلے میری چاند رات کا یہ کلپ دیکھیے. یہ میری چاند رات تھی. کم ہے اب چاند رات. چاند رات کے لیے آئے ہیں. بیرکس اس کو کہتے ہیں, آرمی کی جگہ ہے. چلے آپ کو دکھاتی ہوں. تو 29 نائٹ ہے ٹھاک اور ایسی ڈی جے لگا ہوا ہے پاکستان میں. تو پتہ نہیں یہ تو اچھا نہیں لگتا چاند رات پہ. تو چلے ان کی مرضی, یہ لگاتے ہیں تو لگائے. سو یہ بیرکس چاند رات ہے جو آرمی نے بنایا ہے یہاں پہ. چلے آپ کو تھوڑا سا مٹھ کٹھی اور آپ کو پتہ ہے چاند رات میں کس کے ساتھ منائی؟ میری جو پاکستان میں میں نے ایک بچی اڈاپٹ کی ہے آیات, میں نے اس کے ساتھ چاند رات منائی اور اس کی اپنے ایک ٹیچر کے ساتھ جو میری 4 سالوں سے ٹیچر ہے اس کے ساتھ چاند رات منائی. یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت چاند رات تھی جو میں نے ان کے ساتھ منائی. اور یہاں میں نے بہت ہی خوبصورت اسٹون کے بنے ہوئے بہت ہی پیارے نیکلیسز اور ایئر رنگ لیے. سمیہ کے لیے, نافع کے لیے, ملیحہ کے لیے, سب کے لیے لے لیے میں نے. ایون ایلا کے لیے بھی میں نے لے لیے. بہت ہی نائس پرائس سے مجھے ملے. اور میں نے جو بچی میرے ساتھ آئی تھی تو اس کے لیے بھی شاپنگ کی. اور یہاں پہ پپا نے میرے ساتھ اچھی خاصی لڑائی کی کیونکہ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ تم یہ گندے چپس نہ کھاؤ اور مجھے یہی گندے چپس کھانے تھے. تو پپا کی اور میری لڑائی ہو گئی یہاں پہ. آیات میرا اس سے دا عید شاپنگ رام زما بچے دا واغشت لغشات. آیات تاسو واغشت بوٹ سینڈلز فراک فراک. اور کم کلر دے براؤن ہاں آیات براؤن ڈریس واغشتو. آیات لما یو کے نمرول دي كنا قبيزة كده ديزي نمبا كلر او شوز بوتم او پونی زم واغشتو او باٹا کی شوز واغشتو. شوز خیبه تو او شوز خیبه جراشینو بیا شوز تخایي. تو زما د فیملی ټول خلک بغټو غټو سلون ته ځي, مهندي به کوي او بوکنګ به ځان له کړي. خو زما مهندي د ټولو نه یونیک ده ځکه چې زما یو سټوډنټ به کوي چې کومه زما بچی ده زما سنټر کې هغه بیوټیشن سټوډنټ بھی او د سوینګ بھی او انشاءالله په فیوچر کې به ډېرې ترقي کوي. نو زما ما کله مهندي نه ده لګولې خو زه د خپل سټوډنټ د لاسه به لګوم. ابھی میں نے پشتوں میں بتایا کہ میری مہندی بہت یونیک ہے کیونکہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے میری مہندی کی جو کہ ہماری بیوٹی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے. تو میری چاند رات بہت یونیک ہوئی. اور جب میں چاند رات کے بعد گھر آئی تو یہاں پہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کیونکہ مدر ڈے تھا, عید ڈے اور مدر ڈے پاکستان میں ایک ہی دن تھا. تو سنڈے کو عید بھی تھا اور مدر ڈے بھی تھا. تو میں نے وہ سرپرائز آپ کے لیے ریکارڈ کی. تو یہ سمی کا سٹاف ہے جو پاکستان سے سمی کے لیے کام کرتا ہے اور انہوں نے سمی کا بھیجا ہوا گفٹ مجھے ڈیلیور کیا اور میں بہت ہی حیران ہو گئی. Sami sent me all these. Sami Ramadan Sarali Giri. Sami Coco, thank you so much. Samazvi Sami. Kamala Rali Giri Riyat Gore mein jisse dikha. It's a beautiful bouquet. Dao bara. Oh, nana dekhi bal se di.
Na die gebulsidi, die chocolate die. دا کنګوټه ده Chocolate die. زما د خوخي والا chocolate die تو. انګوټي No. لاس کړی دی Bracelet पे. Thank you समी जान. Thank you. समी आ रही. चले, आपने मेरी चांद रात की छोटी सी क्लिप देखी। चांद रात तक मैं अपने गरीब लोगों में, गरीब कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैं ये कह दूँगी कि मेरे क्या कहूँ इनको गरीब भी मैं कहती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, इनको नीडी भी मैं कहती हूँ तो मुझे बुरा लगता है। बस मैं ये कहूँगी कि मेरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियाँ, तो मेरे जो सेंटर में बच्चे बच्चियाँ हैं वो तो 281 बच्चे और बच्चियाँ हैं, लेकिन मेरे जो KPK में बच्चे हैं वो हज़ारों की तादाद में। तो 30 दिन नहीं बल्कि रमज़ान से 4 दिन पहले पापा ने ये काम शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों फूड पैक दिए और 29 हमने इफ्तार दिए और बहुत थक गई थी। इतनी बिज़ी थी मैं, आई वाज सो बिज़ी इन चैरिटी वर्क कि मैंने अपने लिए ईद के कपड़े भी नहीं लिए। लास्ट नाइट तक मैं सबके लिए ईदी और ईद के कपड़े और ईद का फूड, और आखिर में मैं निकल आई मेरी सेंटर की टीचर अम्बरीन और आयात के साथ कि चलो इनको चांद रात दिखाऊंगी और एंड में मैं कहूँगी खान को कि मैंने ईद के कपड़े लेने। जब उनकी शॉपिंग ख़त्म की तो 12 बज गए थे। मैंने कहा अब इसको कहूँगी तो ये फिर बड़ शुरू कर मुझे चुंडी मार रहा है, चुंडी। मैंने कहा अब ये फिर बाबा शुरू कर देगा कि इतना लेट है, ये है, मैं बैठा हूँ, ये तो मेरी ईद के कपड़े भी नहीं हैं। ये कुर्ता मैंने चैरिटी के बैग में डाला था, नाफिया ने मुझे दिया था, तो मैंने कहा चलो नया था, बिल्कुल स्टिकर के साथ था, पर चैरिटी बैग में डाल दिया था। तो ये बस सामने पड़ा था, ये भी किसी को देने वाली थी, यही पहन लिया आज, क्योंकि मेरे पास समर के कपड़े नहीं हैं और वक्त मिलता नहीं कि मैं ले लूँ। 1 महीने से मैं सोचती हूँ। सुमैया के साथ भी गई, सुमैया वो तब मैं कह रही थी कि चलो सुमैया अपनी शॉपिंग कर ले, तो वो लालच थी कि चलो सुमैया ले ले। हालांकि वो बेचारी फोर्स कर रही थी मुझे कि तुम भी कुछ ले लो। मैं कहा मैं इधर हूँ, मैं ले लूँगी, और एंड में ये हो गया कि मेरी ईद के कपड़े नहीं। और दूसरी मज़े की बात आपको बताऊँ, खान पापा के साथ लड़ाई भी कर ली कि मैंने ग्रोसरी नहीं ली तो खान पापा ने भी ग्रोसरी नहीं ली। तो ना सुबह को नाश्ते के लिए दूध था ना कुछ और था, जीशान सब चले गए अपने घर। तो ये मेरे ईद है। आज सुबह मेरी ईद थी, खान पापा तो चले गए ईद की नमाज़ पढ़ने 7 बजे, 7:30 बजे नमाज़ पढ़ने चले गए, और मैंने कहा चलो मौका है सो जाऊँ। मैं सो गई, सो के उठी तो पापा कहते तैयार हो जाओ। तो मैंने कहा मैं कैसे तैयार हो जाऊँ, मैंने तो कोई कपड़े ही नहीं लिए और ना मेरे पास, सारे वार्डरोब भरा हुआ है, लेकिन वो सब मैं जैसे ही आती हूँ जो वार्डरोब भरा होता है वो मैं सब दे देती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग होते हैं कि मैं कहती हूँ चलो ये वार्डरोब पड़ा हुआ है, तो मैं सब दे दिए मैंने। और मेरे वार्डरोब में 4-5 सूट लटक रहे हैं, वो भी समर के नहीं है, विंटर के, और अब यहाँ गर्मी शुरू हो गई है। तो फिर कहते हैं चलो बाहर चलते हैं। मैं कहा बाहर सब कुछ बंद है। ये तो मैंने कहा हम आजिज़ मस्कीन है कि हमारे रिश्तेदार नहीं, लोगों के तो रिश्तेदार होते हैं, चले जाते हैं। तो सुमैया आई थी, सुमैया वैसे इस प्लान पे आई थी। सुमैया बिल्कुल पाकिस्तान नहीं आना चाह रही थी, क्योंकि 3 सालों से आई भी नहीं थी, और सुमैया ने कहा था कि मैं पाकिस्तान नहीं जा रही हूँ, मैं उम्रे से सीधा UK वापस आऊँगी। पर उसके हस्बैंड ने मुझे कहा कि नहीं, उससे कहो, सुमैया को मनाओ कि ये आ जाए पाकिस्तान, क्योंकि आपके साथ ये ईद गुजारेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कहा अगर मेरे साथ ईद गुजारेगी तो फिर तो मैं सुमैया को बहुत
समझा दूँगी। सुमैया को मैंने मिन्नतें की कि सुमैया चलो पाकिस्तान चलते हैं, वहाँ फ़न करेंगे, लाहौर जाएंगे। मैंने कहा चलो मैं चैरिटी वर्क करूँगी 28/9 तक, और 28 नाइट के बाद हम लाहौर चांद रात के लिए जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, तुम्हारी लिए शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। सुमैया ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया कि सुमैया बस उस बेचारी का कसूर नहीं है, क्योंकि उसके इन लॉज कहने लगी उसको कि नहीं बस आ जाओ। वो फिर सुमैया आई है तो सिर्फ 2 दिन के लिए एक दफ़ा आई मेरे पास, हालांकि प्लान ये था कि ये सारे के सारे दिन मेरे साथ गुजारेगी, सिर्फ 3-4 दिन वो अपने ससुराल गुजारेगी। लेकिन मैंने अपने बच्चों को हमेशा ऐसी तालीम दी है कि मेरे बच्चे अपने ससुराल की बात ज़्यादा मानते हैं। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुओं को मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मेरी बात मानो, और बेटियों को मैंने हमेशा ये कहा है कि ससुराल की मानो। तो सुमैया तो खैर कुछ ज़्यादा ही ससुराल की मानती है, तो वो फिर सुमैया सिर्फ 2 दिन के लिए आई, वो भी डज़ शॉपिंग में सारा टाइम गुजर गया। फिर ईद के करीब आई, 27 नाइट को आई, तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो अब बस मेरी चैरिटी का काम भी ख़त्म हो गया, अब मैं इसके साथ इंजॉय करूँगी, शॉपिंग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। 27 नाइट की सुबह सवेरे उसका हस्बैंड तैयार नहीं, हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान सॉरी, वहाँ ससुराल मेरे लोग हैं, मेरा ये है, मेरे माँ बाप हैं, वो खफा हो गई। चलो मैंने कहा चलो सुमैया हमारे साथ रह जाए, तुम चले जाओ। नहीं, वो भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर सुमैया चली गई। तो सुमैया भी नहीं है हमारे साथ, हालांकि हम दोनों यहाँ अकेले थे, हमारा हक बनता था कि सुमैया हमारे पास रहती। चलो ज़्यादा नहीं तो 1 दिन रह जाती, चांद रात हमारे साथ कर लेती और फिर चली जाती। लेकिन नहीं, सुमैया भी गई। पापा खड़े हो गए असर की नमाज़ पढ़ने, मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर आप लोगों से बात करती हूँ। लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी ये बात बता दूँ कि मेरी ईद बस अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी ईद ये थी कि मैंने ना कपड़े लिए अपने लिए, सिर्फ सुमैया की वजह से मेरी कपड़े भी नहीं लिए गए। मेरा दिल बहुत खफा था कि सुमैया चली गई, बच्चे चले गए। मैं पाकिस्तान में ईद बिल्कुल नहीं मनाना चाह रही थी, मैं सुमैया की वजह से आ गई, क्योंकि रोज़ों में पापा अच्छा खासा माशाल्लाह चैरिटी का काम संभाल लेता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सीधा उम्रे से यूके जाऊंगी, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं पाकिस्तान आ गई क्योंकि सुमैया के हस्बैंड साथ ने कहा था कि नहीं हम तुम्हारे साथ ईद मनाएंगे। तो यानी उसने मुझे ट्रिक कर दिया, सिर्फ सुमैया को लाने के लिए उसने ये मुझे कह दिया कि वो यहाँ पे ईद करेगी। चलो जैसे जो खुश हैं, लेकिन सुमैया भी खुश नहीं है वहाँ पे। मुझे मलीहा भी बता रही थी कि वो भी बहुत खफा है, मामा तुम्हें मिस कर रही है, ये है वो है। थी मदर डे थी, कल मदर डे थी, वो भी मेरी मदर डे मेरी बच्चे मेरा बहुत ज़बरदस्त मदर डे बनाते हैं, वो भी ऐसी थी, बच्चों के बग़ैर थी। लेकिन चलो अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में हज़ारों लड़कियाँ दी हैं, हज़ारों बेटियाँ दी हैं। चले वो खुश हो गई, उनकी चांद रात की, उनकी चूड़ियाँ की, उनके कपड़े ईद के किए, बस वो मेरी ईद हो गई। तो मैं भी खान को हंस रही थी, जो इंसान, मैंने कहा पता नहीं ये अल्लाह का क्या राज है कि अल्लाह ताला मेरे हाथों हज़ारों लोगों को ईद का गिफ्ट, ईद की चूड़ियाँ, ईद की मेहंदी, ईद का सारा कुछ दिया। तो मैंने कहा मेरी एक कच्ची उंगली पे भी मेहंदी नहीं लगी। तो शायद अल्लाह ताला आज़मा रहा हो कि तुम ये सब कुछ करोगी लेकिन तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो चलो ठीक है, ना हो तो ना हो। लेकिन आज थोड़ा सा उदास हो गई। सिर्फ सुमैया अगर मेरे साथ होती तो शायद मेरी ईद बहुत नाइस होती, पर सुमैया मजबूर है क्योंकि मेरी इसमें गलती है कि मैंने हमेशा अपनी बेटियों को कहा है कि अपने ससुराल का करो, अपने ससुराल का करो, अपने खावंद की बात मानो, खावंद के साथ मत लड़ो। तो बस मेरी तालीम, मेरा जूता मेरा सर। नाफिया का आप लोग बार बार पूछते हो कि नाफिया राज़ी होगी कि नहीं, मैं सच बात बताऊंगी आप लोगों को। नाफिया को पता नहीं, वो पुश्तों में कहते हैं कि सब अला पेशवेदा, पता नहीं नाफिया को क्या हुआ है
ना कोई बात हुई है, ना कोई लड़ाई हुई है, ना कोई झगड़ा हुआ है, पर नाफिया साहिबा कहती है कि मैं पीस चाहती हूँ, मैं अपने खावंद और अपने बच्चों के साथ अलग ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो गुजारे, साफ बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ना उसने मदर डे का मैसेज किया है, ना उसने ईद का मैसेज किया है, उसने मुझे भी क्या, उसने अपने बाप को भी ब्लॉक किया है, अपनी बहनों को भी ब्लॉक किया। मुझे नहीं पता, लड़ाई सिर्फ सुमैया के साथ थी और मुझे नहीं पता कि वजह क्या है, कि किसी ने उसके ऊपर जादू किया है, कि किसी ने उसको कहा है कि अपने माँ के साथ नहीं करोगी, तो मुझे नहीं पता कि क्या है। लेकिन बस मैंने अल्लाह पे सब कुछ छोड़ दिया है। अगर अल्लाह चाहेगा तो आ जाएगी। तो एनीवे, मेरी मलो मुझे हर सेकंड में फ़ोन करती है, याद करती है बेचारी, वो भी अकेली है वहाँ पे, क्योंकि सिद्दीक अपने ससुराल के साथ ईद मना रहा था, दीना अपने ससुराल के साथ गई हुई है, तो मलीहा भी बेचारी अकेली है, हम भी इधर अकेले हैं। बस यही हमारी ईद है, यही गुजर गई। चले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर बाकी की बातें करते हैं और फिर आपको बताती हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या 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 कोई गाना है ना, क्या हुआ दिल पे सितम, पता नहीं कुछ ऐसा है, आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। दिन है, कल का दिन तो ऐसे ही गुजर गया, लेकिन आज हम गांव में हैं और ख़ान के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार भी लगते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ख़ान को जैसे मुझे भी बच्चा बच्चा कहते हैं और ख़ान को भी छोटे भाइयों जैसा समझते हैं, तो उनके घर जा रही हूँ। फजल मनान उनका नाम है और बहुत ही हमारा वेल विशर है, तो उनकी तरफ जा रहे हैं। एक हक नवाज़ मेरे ससुर जैसा नाम है, वो भी ख़ान के फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। मैं छोटी होती थी तो ये हमारे घर में आके तो ऐसे जैसे लड़के करते हैं गाने बजाने और ये, और मैं विंडो में से इनको देखा करती थी। तो उस भाई की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए, ये मेरे दुम्बे कितने बड़े हो गए माशाल्लाह, सोना बख्शी में भी अल्लाह। और ये मेरा बाग माशाल्लाह। तो आज 2-3 घर हैं, उनकी तरफ जाएंगे। तो ख़ान की आदत नहीं, ये कहीं आता जाता नहीं, लेकिन मैं इसको कहती हूँ कि ये हमारे बहुत ही मीठे लोग हैं, तो क्यों ना हम इनके घर चले जाएं। ये ऐसा आदमी है कि ये बस अपने घर में खुश होता है। और ये हमारा गाँव है, प्यार, हमारे घर के साथ साथ ये पानी बहता है, ये पहाड़ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है।